Praise the Lord, grace and peace be upon all of you, dear family. We welcome you to hosting the Art Day 24. Today we will study the cross where justice and love meet. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परिवार, आप सभी पर अनुग्रह शांति बनी रहे। संदूक की मेजबानी का दिन 24 में आपका स्वागत है। आज हम क्रूस, जहां परमेश्वर का न्याय और प्रेम एक साथ प्रकट होते हैं, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। We see that the Bible is a book of progressive revelation. From Genesis to the book of Revelation, God gradually reveals His nature, plan, and ultimately His Son Jesus Christ. बाइबल क्रमिक प्रकाशन की पुस्तक है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर धीरे धीरे अपने स्वभाव, अपनी योजना और अंततः अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। The sacrifices, the Passover lamb, the tabernacle, the ark of the covenant, and the priesthood were all pointing towards one person, Christ Jesus. सभी बलिदान, फसह का मेमना, निवास स्थान, वाचा का संदूक और याजकाई एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करते थे, प्रभु यीशु मसीह। Jesus said in Luke 24:27 that all the scriptures testify about me. So the entire Bible finds its fulfillment in Christ. लूका 24:27 में प्रभु यीशु ने बताया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र उन्हीं के विषय में गवाही देता है। पूरी बाइबल की परिपूर्णता मसीह में। Many people know God only as a God of justice, while others know Him only as a God of love. But the Bible reveals that He is perfectly both. बहुत से लोग परमेश्वर को केवल न्याय करने वाला परमेश्वर मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें केवल प्रेम का परमेश्वर समझते हैं। परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से न्याय भी है और प्रेम में भी। God's justice could not ignore sin, and God's love could not abandon humanity. Both are perfectly revealed through Christ Jesus. परमेश्वर का न्याय पाप को अनदेखा नहीं कर सकता था और उसका प्रेम मनुष्य को त्याग भी नहीं कर सकता था। ये दोनों गुण प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से प्रकट हुए। From the beginning, sin always brought death. Romans 6:23 says the wages of sin is death. Every sacrifice in the Old Testament reminded people that sin must be judged. आरंभ से ही पाप का परिणाम मृत्यु था। रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पुराने नियम का प्रत्येक बलिदान ये स्मरण दिलाता था कि पाप का न्याय अवश्य होगा। But God demonstrated His love by sending His Son. John 3:16 declared that for God so loved the world that He gave His only begotten Son. परंतु परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। At the cross, justice demanded punishment, but love provided the sacrifice. Jesus received the judgment that we deserve so that we could receive eternal life. क्रूस पर न्याय ने दंड की मांग की, लेकिन प्रेम ने बलिदान प्रदान किया। प्रभु यीशु ने वो दंड अपने ऊपर से लिया जिसकी हम योग्य थे, ताकि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सके। Romans chapter 3:25-26 tells us that God reminded us while also justifying those who believe in Jesus, the cross reveals both His holiness and His mercy. रोमियो 3:25-26 हमें बताता है कि परमेश्वर स्वयं धर्मी भी बना रहा और साथ ही यीशु पर विश्वास करने वालों को धर्मी भी ठहराया। क्रूस पर उसकी पवित्रता और उसकी दया दोनों प्रकट हुई। The Ark of the Covenant pointed toward this great reality. The blood sprinkled upon the mercy seat was only a shadow of the perfect sacrifice Christ Jesus. वाचा का संदूक भी इसी महान सत्य की ओर संकेत करता था। दया आसन पर छिड़का गया लहू केवल मसीह के सिद्ध और अंतिम बलिदान की छाया था। Because of Jesus, the way into God's presence has been opened forever. We no longer come through animal sacrifices, but through the precious blood of Christ. प्रभु यीशु के कारण अब परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग सदा के लिए खुल गया है। अब हम पशुओं के बलिदानों के द्वारा नहीं, बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं। Dear family, as we continue hosting the hour, let us always remember that the cross is the greatest revelation. The God justice and His love make Christ remain the center of our lives. प्रिय परिवार,
जब हम होस्टिंग दी आग के इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो आइए हमेशा याद रखें कि क्रूस परमेश्वर के न्याय और उसके प्रेम का सबसे महान प्रकाशन है। प्रभु यीशु हमारे जीवन का केंद्र बने रहे। Thank you for joining us today. Continue hosting the hour, and may the grace of the Lord Jesus Christ remain with you always. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। होस्टिंग दी आग की इस यात्रा में बने रहिए और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सदैव आपके साथ बना रहे। Thank you all of you.